السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کل جو میں آپ کی خدمت کے لیے ادھر حاضر ہوتا ہوں، مجھے آج کل فی پروگرام 280 روپے میں پڑ رہا ہے، کیونکہ بارشوں کا مہینہ ہے اور میں سکوٹر کھڑا کر کے جب اپنے گھر کے دروازے تک پہنچتا ہوں تو اس میں نے اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور فی اینٹ 7 روپے کی ہو گئی، اور میں نے 20 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ 140 روپے میرے جانے کے لگتے ہیں اور 140 روپے واپس آنے کے لگتے ہیں۔ چونکہ جب میں گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہوں تو باہر آتا ہوں تو وہ 20 اینٹیں غائب ہو گئی ہوتی ہیں، پھر نئی اینٹیں رکھ کے میں سکوٹر تک پہنچتا ہوں، جب میں ہو کے پروگرام سے واپس جاتا ہوں تو پھر اینٹیں چکی گئی ہوتی ہیں، پھر میں نئی اینٹیں رکھ کے تو اندر جاتا ہوں۔ یار تمہیں پتہ ہے 6 ماہ پہلے اینٹ کا ریٹ کیا تھا؟ کیا جی؟ 6 ماہ پہلے یعنی کم و بیش فروری میں 3200 روپے یعنی 3.5 روپے کی ایک اینٹ تھی، آج 7 روپے کی ایک اینٹ ہے۔ اے میرے مال کا 6 مہینے میں اینٹ کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے۔ اب تو اینٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ بچے محلے کے روڑا ڈال رہے ہو نا، کالیاں اینٹاں کالے روڈ می مسادے یور پاس سے بزرگ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ می والی تو بات ٹھیک ہے، اینٹیں تو اتنی مہنگی کالی نہ کرو۔ اینٹ تو اتنی مہنگی ہو گئی، اب کتے کو مارے تو وہ بجائے چیخنے کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، لے کے دوڑ جاتا ہے کتا اینٹ۔ اب تو جلوس میں اینٹیں چل رہی ہوں تو کئی مسکین بندے بیچ میں تھیلے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو مستری اینٹ کو گارا لگائے تو پیچھے سے مالک تھپڑ مار دیتا ہے، اتنی مہنگی اینٹ گندی کر دی ہے۔ اب تو ورک شاپ میں مستری چھوٹے کو نہیں کہتا ٹائر کے نیچے اینٹ رکھ ہوئے، اب تو کہتے ہیں چھوٹے ٹائر کے نیچے لیٹ ہوئے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے متحدہ کا ہر مطالبہ مانتے رہے ہیں، اب ایسا نہیں کریں گے۔ میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے۔ ایک منٹ دمال بعد میں ڈالنا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے مرشد نے یہ کیا بیان دیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا بیان دیا! یار یہ کیا عجیب بیان ہے کہ ہم متحدہ کے تمام مطالبات مانتے چلے آئے ہیں، اب نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ متحدہ کے غلط اور ناجائز مطالبات مانتے چلے آئے ہیں، اور اگر وہ غلط اور ناجائز مطالبات نہیں تھے تو پھر اب کیوں نہیں مان رہے؟ اگر وہ جائز مطالبات تھے تو آج بھی مانے، اور اگر وہ غلط ہے تو پھر پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کیوں مانتے چلے آئے ہیں۔ یہ کیا بیان ہے مرشد؟ یہ کیا بیان ہے؟ مرشد خدا کے واسطے بیان ذرا دھیان سے دیا کرے، پھر اس قسم کے جو چلاکو ہوتے ہیں وہ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ تمہارے مرشد نے کیا کہا ہے۔ 2-3 دفعہ تو اس نے میرے منہ کے اوپر اتنا مزاق اڑایا، او بھی کیا، پی 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 بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے مرشد MQM کے حوالے سے جو اب آپ کے بیان آنے شروع ہوئے نا، وہ بالکل ایسی ہیں جیسے میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے نا جی، تو میاں جس بیوی کے ہاتھوں 20 سال سے روٹی کھا کھا کے خوش ہو رہا ہوتا ہے نا، لڑائی کے بعد اسی کے متعلق کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہائے ہائے اس عورت کو روٹی پکانی نہ آئی۔ لڑائی سے پہلے وہ 20 سال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کرما لیے، ہائے 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 بینگن بھی پکاتی ہو تو سواد مرغے کا ہی آتا ہے، اور وہی خامد لڑائی کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے جو مرضی پکا لو سواد بتاؤں کا ہی ہے۔ لڑائی سے پہلے بیوی آواز مارے نا، اجی سنتے ہیں، تو بندہ آگے سے کہتا ہے جی جی حکم کرے۔ لڑائی ہو جائے تو آواز آئے نا، اجی سنتے ہیں، سنتا ہوں اور میں بولا ہوں، یا میرے کان کٹے ہوئے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے روبوٹ نرس تیار کر لی۔ چلو نرسیں بھی روبوٹ بنا لی ہیں امریکہ والوں نے، جی، اور ان نرسوں کو شفٹر نہیں ٹرانسسٹر کہا کریں گے۔ اور اگر یہ روبوٹ نرسیں ہمارے ہاں آ گئی تو ادھر تو ہر دوسرے دن ڈاکٹر اور نرسیں جلوس نکالتے ہیں، انہیں روبوٹ نرسوں نے بھی جلوس نکالنا ہے۔ لوڈ شیڈنگ بند کرو، لوڈ شیڈنگ بند کرو، لوڈ شیڈنگ بند کرو۔ کیا وہ بھائی جی جلوس کو؟ نرسوں کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے۔ یہ انسانی نرسیں تو ایک دوسرے کا میک اپ دیکھ کے سڑ جاتی ہیں نا،
یہ روبوٹ نرسوں نے دیکھنا اوور وولٹیج کی وجہ سے سڑ جانے. اخیر ہر نرس نے اپنا اپنا سٹیبلائزر اٹھایا ہونا. روبوٹس کا جس قدر فضول استعمال یہ کرتا ہے نا, وہ امریکیوں کی سوچ سے بھی آگے کی بات. وہ سوچتے تھوڑے ہی ہیں, وہ تڑا تڑ بناتے جا رہے ہیں روبوٹ. تم دیکھنا اور 10-12 سال بعد انہوں نے وزیر مشیر بھی روبوٹ بنانے شروع کر دینے, بلکہ دوسرے ملکوں کو سپلائی کریں گے. روبوٹ وزیر اعظم, روبوٹ صدر امریکہ سے حاصل کرے. پاکستان سے بھی آرڈر جائے گا, پائی جی ایک وزیر اعظم روبوٹ دے دیں, ایک صدر روبوٹ دے دیں. ادھر سے آرڈر اب پہلے بھی روبوٹ ہی کام کر رہے ہیں, کیوں پیسے ہی آیا کر رہے ہو. راجہ ریاض نے کہا ہے کہ شہباز شریف لندن سے آئے ہیں, اللہ کرے ان کا ذہن صحیح کام کرے. بالکل ٹھیک ہے, راجہ صاحب کے خدشات اپنی جگہ درست اور بجا ہیں, کیونکہ راجہ صاحب نے خدشات و تجربات کے تحت یہ بات کر رہے ہیں. یار بندہ جب کسی بڑی جگہ سے ہو کے واپس جائے تو دماغ اور دل دہل جاتا ہے. راجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. راجہ صاحب جب بیچارے لاہور سے ہو کے واپس فیصل آباد جاتے ہیں نا, تو نہر پہ پہنچ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ راوی دریا مجھ سے پہلے فیصل آباد پہنچ گیا. اندر جا کے بیچارے گھنٹہ کار کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پھڑ, منارے پاکستان کے اوپر کڑی کون لگا گیا. گھنٹہ کر کے 8 بازار دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں وکھرے وکھرے بیٹھے ہو, بازار ایک کر لو برکت پڑے گی. فیصل آباد کے ہر حمام میں گھس کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آئے یہ رانا ثناء اللہ تم سے شیو کراتا ہے. اب بولتے جا اس کی مچھے کیوں نہیں چھوٹی کرتے. راجہ صاحب بڑے معزز اور بھولے آدمی ہیں بیچارے. محلے میں کوئی رشتے کی بات ہو رہی ہو نا تو ایسے بندے کو لے جاتے ہیں معزز سمجھ کے. اچھا بڑا رشتہ کروا کے ہاتھی توڑوا آتا ہے. نہیں جی نہیں, بچہ بڑا شریف ہے جناب, میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بہت نیک لڑکا ہے. نہیں نہیں کرے ہاں, آپ کوئی ایسی بات نہیں. جب اگلا ہاں کر دے, لے بھائی اب تیری ہاں ہو گئی ہے, رشتہ تیرا ہو گیا, اب چرچ چھوڑ دو تمہاری مہربانی. اب ڈکیتیاں بھی چھوڑ دو, میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں دیکھ لو میں وعدہ لینا میں نے تم سے. اور دیکھو سسرال والے تمہارے اب ماشاءاللہ بڑے تگڑے آدمی ہیں, اب ادھر ادھر ڈکیتیاں نہ کرتے پھرنا. یار خدا کا خوف کرو, ان کی سادگی کا مذاق اڑا رہے ہو. یار مذاق کا بڑھا رہا ہوں, میں تو بتا رہا ہوں کہ واقعی بہت ہی سادے آدمی. حجامت کرانے جائے نا تو نائی کے شیشے کے آگے بیٹھ کے نائی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار ہے بندہ پہلے سکھ نہیں سی ہوندا. دیکھیا گیا سا دیکھیا سی. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک. اچھا جی, جنید صاحب کل آپ فرما رہے تھے کہ کل کے شو میں سیاست کی اصول پسندی کی بات کروں گا. کیا بات کرنی ہے یار تم نے سیاست کی اصول پسندی کی؟ دیکھ رہے ہو تم یہ اصول ہے. کل کو جو ایک دوسرے کو تقریباً گالیاں نکالتے تھے وہ آج دوست بنے ہوئے ہیں, اور جو کل کے بڑے کوڑے ٹیٹ کچور دوست تھے وہ آج ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں. یہ کہاں کا اصول ہے جی یہاں پہ؟ تو میں نے تمہیں کب یہ کہا تھا کہ میں نے پاکستانی سیاستدانوں کی شان میں کوئی قصیدے پڑھنے ہیں؟ میں نے بھی ان کی بے اصولی کی رونے ہی رونے تھے. ذرا آہستہ رونا, اور رونے میں میرا مقابلہ نہ کرنا, میں بہت اونچی روتا ہوں. یار میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ آج کل پاکستانی سیاست میں جو جنس سب سے زیادہ نایاب ہے بلکہ بالکل معدوم ہے وہ یہی اصول ہے, اصول پرستی ہے. آپ محدب عدسہ لے کر تلاش کرو یا دوربین لے کر ڈھونڈو تو بھی یہ جنس نہیں ملتی. ہائے ہائے ہائے, اور تم ذرا دوسرے ملکوں کی طرف نظر دوڑاؤ, ہائے 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 کتنی شرمندگی ہوتی ہے یار. کہیں ایسی بے اصولی نظر نہیں آتی جیسی ہماری سیاست میں. یار ویسے دیکھو, جب بھی ہم پاکستانی سیاست کا ذکر کرتے ہیں تو ہم فوری طور پر دوسرے ملکوں سے اس کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں. دوسرے ملکوں کی بات تو تم چھوڑو, اپنے ہاں تم دیکھ لو, ذرا پیچھے چلے جاؤ, تاریخ کا پہیہ ذرا پیچھے گھماؤ تو پھر تمہیں نظر آتا ہے کہ یہی سیاستدان جو آج ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے تمام اصولوں کو قربان کرتے نظر آ رہے ہیں, ان کے جو بزرگ تھے, ان کے جو باپ تھے, باپ دادا جو تھے, وہ اصولوں کی خاطر کتنے کتنے بڑے سٹینڈ لیتے نظر آتے ہیں تمہیں. یہ آج تم دیکھو, آج اسفند یار ولی صاحب ANP جو ہے, یہ جس کے بارے میں یہ کتنی ایک مروجہ ایک سوچ ہے کہ یہ بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ اپنے اس سٹانس کی خاطر کوئی بھی اقدام اٹھانے کے لیے تیار تھی. ٹھیک ہے, آج تم دیکھو وہی جو ANP ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح گلے مل رہی ہے.
कोई उनके असूल नजर नहीं आते। और यही जो असफंद यार वली साहब हैं, इनके वालिद वली खान, उनकी शख्सियत से, उनकी सोच से आपको हजारा तरह के इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन वली खान साहब के जो असूल थे वो उस पर डटे हुए थे। बल्कि वली खान साहब की असूल पसंदी का मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, जो गालिबन पहली बार जिसका जिक्र इस तरह मीडिया पे किया जा रहा होगा कि जब ज़ियाउल हक की वफ़ात के बाद गुलाम इसहाक़ खान साहब जो थे वो अबूरी सदर थे और बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म बन चुकी थी, तो एक अस्करी इदारे के सरबराह ने वली खान साहब को दावत भेजी कि हमें आपको इंटरव्यू करना है, हम आपको सदर बनाना चाहते हैं। तो वली खान साहब ने जो पैगंबर था उसको जवाब दिया था कि मैं ऐसी सदारत पर लानत भेजता हूँ जिसके लिए मुझे इंटरव्यू देना पड़े। नहीं, ये तो गलत बात है, इंटरव्यू तो देना चाहिए किसी नौकरी के लिए। यार यही तो सोच का फर्क था कि उस वक्त के जो लोग हैं वो किसी सदारत, वजारत या ओहदे को किसी इदारे या एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी नहीं समझा करते थे। हाय हाय हाय। और अब देखो, तुम ये देखो कि इसी सदारत के लिए उस वक्त वली खान के अलावा नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम को भी ये ऑफर की गई थी। वो इंटरव्यू देने के लिए तो तशरीफ ले गए थे, लेकिन उन्होंने उस जो अस्करी इदारे के सरबराह ने जब ये शर्त रखी कि आप सदर बनने के बाद 8वीं तरमीम को नहीं छेड़ेंगे, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इतना मेरा सख्त स्टैंस है 8वीं तरमीम के बारे में, मैं इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इस इनकार की वजह से उन्हें फिर सदारत नहीं दी गई थी। यार ये वली खानदान सारी जिंदगी अमेरिका की मुखालफत करते रहे और अब उन्हीं के बच्चे अद्धी सियासत अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तुम इसके अलावा इसे ये भी देख लो ना, मौलाना फजलुर रहमान, इनके वालिद साहब मुफ्ती महमूद जो थे वो जब सरहद के वजीर आला थे तो उनकी मखलूत हुकूमत बलोचिस्तान में थी। जब भुट्टो ने बलोचिस्तान में नैब की हुकूमत का खात्मा किया था तो इन्होंने सरहद हुकूमत जो है वहां से इस्तीफा दे दिया था। वाह वाह वाह। और सुना है सारी जिंदगी वजीर आला हो के भी नीचे साफ पे बैठते थे। और आज तो मौलाना फजलुर रहमान साहब देख लो कि किस तरह उन्होंने सबसे पहले एमएमए का बेड़ा गर्क किया इक़्तिदार की खातिर, यानी इस्तीफा देने के लिए मौलाना किसी कीमत पर भी तैयार नहीं है। यानी उनके लिए दुनिया का जो मुश्किल तरीन काम है वो इक़्तिदार वालों का साथ छोड़ना है। और मौलाना फजलुर रहमान को देख लो, माशाल्लाह सेहत उनकी इतनी तगड़ी है कि एक दफा किसी की छोटी गाड़ी में बैठे थे तो गाड़ी पाड़ गई थी और अपनी उनकी गाड़ी माशाल्लाह इतनी बड़ी है कि उसके सामने वो छोटे से लगते। यार चौधरी ज़हूरुल्लाह मरहूम को देख लो, आप उनकी शख्सियत या उनके तर्ज सियासत से इख्तलाफ 100 तरह के कर सकते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने असूल लिया, जिसकी मुखालफत की या जो असूल अपनाया, जो स्टैंड लिया, उसकी खातर वो आखिरी दम तक कायम रहे और अपनी जान गंवा दी उन्होंने, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपनी मुखालफत जिसके साथ थी वो आखिरी दम तक नहीं छोड़ी। लेकिन आज उनकी अगली नस्ल यानी काफ लीग की मौजूदा क़यादत तुम देखो कि इक़्तिदार की मोहब्बत में किस किस तरह के पैंतरे नहीं बदल रही। और ये सिर्फ यानी दो नस्लों का मुवाजना नहीं है, एक ही घर में। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम ये देखो आज मोहतरमा आबदा हुसैन साहिबा, यानी उनको अपनी सियासी वफादारियां तब्दील करने के हवाले से उनके बारे में आए रोज नित नए लतीफे बनते रहते हैं। हाँ हाँ, उनको तो फोन कोई करता है ना तो पहले पूछता है कि बेगम साहबा आजकल कौन सी पार्टी में है। बिल्कुल। लेकिन उनके शौहर फखर इमाम साहब की जो सियासत है वो अब बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जब वो सियासत किया करते थे तो उनकी पूरी सियासत जो थी वो असूल परस्ती और असूल पसंदी से इबारत थी। उन्होंने बाकायदा जब वो वफाकी वजीर थे तो उस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा था मुल्तान चेयरमैन जिला कौंसिल का, और जैसे ही वो इलेक्शन एक वोट से हार गए थे, सिर्फ एक वोट से वो इलेक्शन हार गए थे, तो उन्होंने फौरी तौर पे वफाकी वजारत से इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद जब वो स्पीकर थे तो बतौर स्पीकर उन्होंने ज़ियाउल हक के खिलाफ कई रूलिंग्स मंजूर की थी और भी कई ऐसे काम किए थे जिन्होंने उनको एस्टेब्लिशमेंट से दूर कर दिया था, और अल्टीमेटली फिर हुकूमत ने उन्हें हटा दिया था। ज़ियाउल हक साहब ने खुद उस पूरी मूव की, उनके खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद थी उसकी निगरानी की थी और अल्टीमेटली उनको स्पीकरशिप से हटना पड़ा था। हाय हाय हाय। फखर इमाम साहब बड़े ग्रेसफुल आदमी है, बहुत। इस तरह के बंदे पुरानी फिल्मों में जज बना करते थे। मगर अफसोस के इस तरह के बासूल सियासतदान इक्का दुक्का ही रह गए हैं, वरना ज्यादातर सियासतदान तो इतनी तेज पार्टी बदलते हैं जैसे सर्कस में कार्टून कपड़े नहीं बदलता। यार यही तो पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया है कि तुम पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुल्क देखो जो जदीद सियासी माशरे कहलाते हैं, वहां पे जो सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी है वो सबसे ज्यादा लीडर्स की होती है,
पब्लिक की कोई वफादारी नहीं होती सियासी जमात के साथ। वो जब भी इलेक्शन आते हैं वो मेरिट और कारकर्दगी देखकर वोट देते हैं। हमारे यहाँ इसके बिल्कुल बरक्स मामला है। हमारे यहाँ लीडर्स की सियासी जमातों के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, अवाम की वाबस्तगी कायम है। यानी अवाम की जो मोहब्बत अपनी सियासी जमात के साथ और अपनी मुखालिफ सियासी जमात के साथ जो नफरत है वो अपने बामे अरूज पर है। बिल्कुल इधर अवाम ही बेचारी वफादारियां निभा रही है। ऐसे ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं यार, हंसी निकल जाती है। जुलूस में नारा बज रहा है, चौधरी अलहदा जिंदाबाद, पीपल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी अलहदा जिंदाबाद। ऊपर से वो लीडर बताता है अल्लाह देता नून लीग में चला गया हुआ है, ना बदल लो या पार्टी बदल लो। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार अजीजी, एक बात तो बताओ, क्या जो खेल तुम अपने बचपन में खेलते थे वो अपने बच्चों को आज खिलाते हो? ले, अब वो खेलें कहाँ? जैसे मुआशरे में से आहिस्ता आहिस्ता मासूमियत नहीं खत्म हो गई, इस तरह वो खेलें भी खत्म हो गई हैं, चूंकि वो खेलें सारी मासूम होती थी। वैसे तुम्हें वो खेल याद तो होंगे? सारे याद हैं। अभी अरसा ही कितना हुआ है? 50-55 साल हुए होंगे। यार इतने ज्यादा ना कह दिया करो, अभी जुम्मा 40 साल तो हुए इस बात को। 10 साल कम करके कितना खुश हो रहा है यार। वैसे ये क्या सवाल पूछ लिया, दास ही कर दिया तुमने। लाला लो के ऐसी ऐसी अजीब खेल तुम्हें बताऊंगा, तुम हैरान हो जाओगी कि ये खेले थी। अच्छा। ना उसमें को पैसे चाहिए होते थे, ना बल्ला खरीदना पड़ता था, ना विकेटें खरीदनी पड़ती थी, ना पैड, ना ग्लव्स, ना हैट, कुछ भी नहीं। अच्छा। घर में ही सारा सामान तैयार हो जाता था, बल्कि तैयार ही होता था। तैयार ही होता था। सड़क से ही सामान उठा के खेलना शुरू कर देते। अच्छा एक मिनट ठहरो, तुम शो में भी इसका जिक्र करते रहते हो, इसे बताओ बांदर किला क्या होता था? बांदर किला, ये तुम कहीं मुझे बांदर महसूस करके तो नहीं पूछ रहे? यार बड़ी अजीब और दिलचस्प खेल होती थी ये बांदर किला। अल्लाह लोग के बांदर किले में क्या होता था? एक लकड़ी का किला लेके ना, जिसे उर्दू में मेख कहते हैं और इंग्लिश में कील कहते हैं, वो जरा बड़े साइज का ठोक के चंगी तरह ईंट के साथ ही ठोक लेते थे, उधर से पकड़ के कोई। अच्छा। उसके साथ बांधते थे एक रस्सी। अच्छा। ऐਵੇਂ को 3-4 फुट की रस्सी। अच्छा। उसके पास सारे खिलाड़ी जो 15-20 होते थे अपनी जूतियां उतार देते थे। अच्छा। लो जी, अब सारे 15-20 बंदे आले दुआले हो जाते थे इर्द गिर्द, और एक बंदा वो रस्सा पकड़ लेता था। अच्छा। उसने वो रस्सा नहीं छोड़ना होता था, और सारे खिलाड़ी ना जी पांव के साथ और अपने हाथों के साथ जूतियां उठाते थे किले के गिर्द से। अच्छा। और वो बंदा रस्सी पकड़ के किले के इर्द गिर्द घूमता रहता था। जो जूती उठाने आता था या हटाने आता था पांव के साथ, अगर उस बंदे का रस्सी वाले का उसको हाथ लग गया तो वो आउट हो गया, फिर उसकी बारी आ गई, फिर वो रस्सी पकड़ लेगा। और अगर किसी को भी हाथ नहीं लगा और सारी जूतियां किले से हट गई हैं और उन्होंने हाथों में पकड़ ली हैं, उसके बाद वो रस्सी वाले बंदे के साथ वो होती थी जो आज फैसलाबाद में डाकुओं के साथ नहीं हुई। मार मार के जूतियां, आए हाय हाय, उसका हशर कर देते थे। और एक पॉइंट रखा होता था को फरलांग को परे। अच्छा। वो रस्सी वाला बंदा दौड़ेगा उधर से, और जाके उसने उस पॉइंट को हाथ लगाने तो उसकी जान छूट। पिट्ठू गरम क्या होता था? पिट्ठू गोल गरम। आहा यार, कैसी कैसी खेल याद करा रहे हो। पिट्ठू गोल गरम क्या होता था? 5 ठीकरियां लेके ना, ठीकरियां, ये कड़ा टूटा हुआ कहीं से पकड़ लिया, या कोई और गीटियां सी पकड़ ली गोल, जैसे ये अपना कैरम बोर्ड की गीटियां नहीं होती, स्लाइडर होता है, उस तरह की। वो 5 ऊपर नीचे रख के ना जी तो गेंद पकड़ लेते थे हाथ में, ये जिसको 7 रबटी गेंद कहते हैं। गेंद को इंग्लिश में खिद्दू भी कहते हैं। वो 5 ठीकरियां ऊपर तले रख के तो एक जगह पे रख देते थे और 10 फुट दूर निशान लगा देते थे, और गेंद के साथ ठीकरियों का निशाना लेते थे। अगर तो ठीकरियों को लग के किसी अगली टीम ने कैच कर लिया तो सारी टीम आउट। अगर ठीकरियां गिर गई और गेंद गिर गया, जितनी देर तक उस टीम ने ठीकरियां गिराने वाली ने ठीकरियां ऊपर तले नहीं रखनी, उनको वो गेंद पड़ते थे। ओए होए 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 होए, कस कस के मारते थे गेंद। कोकला छुपा के जुमेरात आई जे। हाय 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 हाय, यार तुम तो बकायदा एक पेंडू इंसान। तो मैंने कब कहा मैं नहीं हूँ? मैं समझता हूँ कि टाई शाई लगाई हुई या कहीं उधर मार्लन ब्रांडो के साथ पड़ता रहा। वैसे अजीज साहब, आपको एक बात बताऊं, क्या? ये कोकला छिपाकी और पिट्ठू गोल गरम तो मैंने भी खेला हुआ है। नहीं, गोल गरम तो तुमने खेला होगा, चूंकि तुम भी गोल सी हो।
ये वाकई लड़कियां ये आधा खेलती थी, पिट्ठू गोल गरम और कोकला छिपाकी। कोकला छिपाकी क्या होता था, सारे ऐसे नईरे नीची करके दायरे में बैठ जाते थे। एक बंदा जो है वो अपना मफलर उसको वाट दे के उसको ऐसे मरोड़ के असल महारत ये होती थी कि वो जो मफलर या दुपट्टा है उसको कितना टाइट बनाया जाए, हैंटर बन जाता था, बड़ी जोर से लगता था। अब एक बंदा सारों के गिर्द घूम रहा है, सारे नईरे नीची करके बैठे हुए, नीचे भी करते थे और चोरी चोरी देखते थे कि कौन है। और वो कह रहा है कोकला छिपाकी जो मेरा ताई जे जेड़ा अगे पीछे वेखे ओदी शामल ताई जे। हाय हाय हाय, जिसके पीछे उसने हैंटर रख दिया और एक चक्कर और लगा लिया और उसको पता नहीं चला कि मेरे पीछे हैंटर पड़ा हुआ है, उसको फिर हैंटर उठा के वो पड़ती थी ना, ओए ओए ओए, 11 मान से जिस्म पके हो जाते थे, ऐसी ऐसी खेल थी। एक गेम होती थी रुमाल चुकन, वो क्या होता था जैसे कबड्डी नहीं होती उस तरह 2 टीमें बन जाती थी, 6-6 की या 8-8 की। सेंटर में रुमाल रख के ना, ये हाथ वाला रुमाल जो होता था ये रख देते थे, उसके इर्द गिर्द ऐसे एक गोल दायरा बना लेते थे। सही। अब दूर 20 फुट पर है, 20 फुट इधर, दोनों टीमें खड़ी हो जाती थी लाइन लगा के। अच्छा, लो जी, उधर से एक खिलाड़ी आना और एक इधर से आना, दोनों खिलाड़ी आके तो ऐसे नीचे हो गए ना उस रुमाल के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते थे, ऐसे ऐसे। अच्छा, अब जनाब जिस खिलाड़ी ने रुमाल उठा लेना ना, उसने दौड़ना वापस अपनी लाइन की तरफ, और जो दूसरा बंदा उसने उस लाइन से पहले पहले तक उसे हाथ लगाना है। बिल्कुल जो कबड्डी के रूल्स हैं। अगर तो हाथ लग गया तो आउट हो गया बंदा, अगर नहीं लगा वो लाइन क्रॉस कर गया तो उसका नंबर हो गया। बड़ी कमाल ये गेम होती थी। ओहो, एक लंगड़ा शेर होती थी जिसमें ऐसे ऐसे करके हाथ लगाते थे। बिल्कुल। एक चीचो चीज गडेरिया होती थी जिसमें कोले के साथ लेने लगाते थे, चुप के। एक घोड़ी घोड़ी होती थी, सारे ऐसे कुब्बे होके पकड़ लेते थे एक दूसरे का कमर, और पीछे से खिलाड़ी आके उस पर जंप करते थे, सारे ऊपर चढ़ जाते थे। एक बर्फ पानी होती थी, एक बाडी होती थी, बाडी जो ऐसे ऐसे करके पकड़ते थे। अजीज साहब, इससे लड़कियों की गेम हुआ करती थी स्टापू। हाँ, लड़कियों, अच्छा इस दौर में जितनी ये पुरानी खेलें थी इसमें कोई तखसीस नहीं थी लड़कियों और लड़कों की, सारे बच्चे मिलके खेला करते थे। लेकिन बाज खेल ऐसे थे जो लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग हुआ करते थे। हाय हाय, और जो लड़कियों की खेले किसी शो में जरूर उनका भी जिक्र करेंगे तफसील के साथ। जरूर कहीं अल्लाह लोग रोने न लग जाए। नाज़रीन, यह वक्तों तक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। यार क्या जी याद कराया तुमने गेमों का, ओहो। हाँ जी, शुरू करें जी हस्बे माजी। नहीं जी, आप दोनों आपस में हस्बे माजी कर ले, मैंने नहीं जनाब कर। क्यों? बड़ी मेहरबानी जनाब, है 5-10 के लिए मुझे हमें गवर्नमेंट के अपना अवाम के सामने ये लील ना कराया करो। क्यों? रहने दो तुम, हमें इतना थोड़ा नाम। जाओ देखो मोबाइल कंपनियां 30-30, 40-40, 50-50 तोले सोना दे रही हैं, और तुम मेरे साथ वो करते हो कि मुझे सोने भी नहीं देते। ऐसी सर पे चढ़ते जा रहे हो। कितना इनाम चाहिए तुम्हें? कम से कम 5 लाख रुपया नाम होना चाहिए। मुंह फाड़ के 5 लाख दोबारा मुंह से निकालो। 5 लाख, 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 5 लाख क्या है? पश्तो में 5 लाख देने 5 लाख तो अच्छा चलो, फिर मेरी भी एक शर्त मानो। क्या? एक तस्वीर दिखाऊंगा 2 शख्सियात की, दोनों में से जिसकी भी तुमने बूझ ली 5 लाख रुपया नकद। ये क्या बात हुई? 5 लाख रुपया है यार, 10-12 तस्वीरें तो दिखाओ ताकि मैं बूझ लूं। इतनी बड़ी ऑफर है। चलो ठीक है, ठीक, दिखाओ, शुरू करो। पहली जो शख्सियत है ये खातून पॉलिटिशियन की तस्वीर है, ये लो। बीबी बेनजीर साहबा, लाओ 5 लाख निकालो। बस हो गया, खत्म 5 लाख निकालो। तो पूछे यार बता नहीं दिया मैंने जब बीबी बेनजीर साहबा थी। उनसे पूछ चले कि कौन सी खातून है। वाह वाह वाह, 5 लाख। ये जो छोटी बच्ची साथ है ये बताओ कौन है? फिर से दिखाओ यार। ये लो। ओहो, उसका मुंह याद आ उधर है तो मैं क्या बताऊं बच्ची कौन? अब मैं उसको कहूं कि मुंह इधर करे तुम्हारे 5 लाख के लिए? तो कहो 5 लाख है में नहीं आ जाता। तुम्हारा मतलब है कि मैं फटाफट 5 लाख लूं और जाऊं कर? आए बल्ले। अच्छा बताओ कौन है? फिर दिखाओ यार। चलो इसी बच्ची की एक और तस्वीर देखो। दिखाओ। ये लो।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छे जी। इस पे तो मैं फौरन बोझ जाऊंगा। वाह वाह वाह, ये रिवर्स गेयर ना लगाओ, आगे को जाओ। वो 15-16 साल की तस्वीर दिखाई यार, सीधे ही साल पे आ गए। इसमें उसके फीचर्स ज्यादा नुमाया है यार, गौर से देखो, इसमें उसके फीचर्स ज्यादा नुमाया है यार। किस तरह फीचर नुमाया? वैसे बच्ची के फीचर अच्छे हैं, मगर नुमाया तो नहीं है कि मैं बोझ ही जाऊं। चलो एक तुम्हें और इस पे मैं अगर मधुबाला कह दूं तो फिर मगर अजीज साहब, मधुबाला सियासतदान नहीं थी, और बड़ी सियासी थी, तुम्हें क्या पता है? हर फिल्म उसकी हिट होती थी, तो इससे बड़ा सियासतदान और कौन हो सकता है? अच्छा यार, ये एक और तस्वीर देखो, ये लो ओह क्यूट। ये जो ऐनक वाले हैं यार, शाबाश। ये जो गोद में बच्ची है आगे, यार थोड़ी सी तो उम्र बढ़ाओ, तुम तो बिल्कुल ही साल 2 साल पे ज्यादा फ्री ना होते जाओ। मैंने तुम्हें एक तस्वीर कही थी, 3 दिखा दी है, इतने तुम अकल मानते हो कि अभी भी नहीं पूछा जा रहा तुमसे। ये 1 घंटा वक्त दे दो और ये 3 तस्वीरें मुझे दे दो। बस करो यार, ये देखो, गौर तो करो। बेटे मुंह इधर करना बेटा। बेटे हकीकी के 5 लाख का मसला, खुदा के वास्ते मुंह इधर कर दो। इतनी प्यारी बच्ची हो तुम, इधर मुंह करो बेटा। बच्ची का मुंह इधर करवाऊं मैं? कराओ ये। लेकिन शर्त अब खत्म हो गई 5 लाख में। क्या मतलब? बस खत्म हो गई अब। ये देखो, ये मोहतरमा ये है। या अल्लाह खैर करे। शर्मिला फरूकी साहब हाँ, शुक्र है मैंने को अल्लाह लोगे ऐसी बात नहीं की, वरना तुम्हें पता नहीं ये सिंध की डॉक्टर फरदौस आशिकवान है, बहुत डाडी खतून है। तो जी ये 5 लाख तो गए, अब एक चांस और है 5 लाख का। ये दूसरी सियासी शख्सियत है, इन्हें बूझो। बड़ी मेहरबानी यार तुम्हारी, तुम कॉपरेट कर रहे हो। आज जरा कोशिश करो कि आज तुमने 5 लाख ये को दे के जाना है। हाँ, तुमने कौन सा पल्ले से देना है यार, चैनल की तरफ से जाना है। तुम्हारी मेहरबानी है, अगर तुम मुझे 5 लाख आज दिला दो ना, तो मैं डोसे बेकरी का केक लेके दूंगा। अल्लाह जानता, डोसे बेकरी, आहा, तुम केक मुंह में डालोगे तुम्हें लगेगा कि अब मक्खन ही खा रहे, फ्रेश एंड बटरी। ये तो मक्खन लगा रहे हो यार। दिला दो यार 5 लाख दिखाओ। अच्छा ये लो यार, ये लो। आहा हा, लो जी, ये जो तस्वीर पे नेरा छाया हुआ है ना, ये मुझे राजा परवेज अशरफ की लगती है। ये इन्हीं की दूसरी तस्वीर के साथ मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं, ये नून लीग के रहनुमा है। अच्छा जी। ये लो, ये साफ पता चल रहा है, जरा गौर करो, टॉक शोज में बहुत ज्यादा तुम देखते हो इन्हें। अच्छा जी। हाँ, बहुत जबरदस्त मुकर्रर है। और ये हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज के दौर की इनकी तस्वीर है। ये भाई साहब नून लीग के लीडर, और टॉक शोज में बहुत बोलते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं या बहुत बोलते हैं? बहुत ज्यादा भी बोलते हैं, बहुत अच्छा भी बोलते हैं। ओह अजीज साहब, मुझे पता चल गया हैं? बता दो जल्दी से। पहले पैसे आधे आधे कर लें। बहुत अच्छे, आधे आधे क्यों कर ले? ऐसे मैं नहीं बता रही। चलो ठीक है, आधे आधे कर लेते हैं। 10,000 तुम्हारा, 490 मेरा। चलो चले 10,000 में फिर आपको सिर्फ एक हिंट ही दूंगी, मगर हिंट ऐसा होना चाहिए कि फिर मैं उस पर बूझ लूं। ये सियासत करते हैं। बहुत अच्छा हिंट बताया, सियासत करते हैं। वाह वाह वाह। तो मैंने कौन सा कहा है 10 रुपए लेके कमर पे खारिज करते हैं? अच्छा थोड़े ये तो वो भी बता चुका है कि सियासतदान है। अच्छा थोड़े से पैसे और बढ़ा दे, मैं एक हिंट और आपको देती हूँ। नहीं रहने दो, तुम्हारे हिंटों पे। बहुत अच्छा हिंट है। अच्छा जी। चलो 20,000 दे दूंगा। गुड। इनके बाल आजकल सफेद हो गए हैं। बहुत अच्छा यार, क्या बात है, इसकी जहानत पे सदके जाऊं। ये तो अच्छा हिंट है। और यार ये तो जाहिरी बात है, जिस बंदे की भी ब्लैक एंड तस्वीर मौजूद है उसके बाल अब तक सफेद ही हो चुके होंगे। वैसे कोई काला कोला लगा के फिरता रहे तो वो बकरी बात है। ये जितनी देर तुमने वक्त जाया किया ना फजूल बातों में, अगर तुम तस्वीर पे गौर करो तो बूझ चुके होते आप। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। फीचर्स देखो, साफ चीख चीख कर बता रहे मैं कौन हूं। खामोश है वो, कब चीख रहे हैं यार। कौन भाई साहब है, मेरी क्या मत मारी गई है यार। और यार इस सेगमेंट के लिए 1 साल का वक्त नहीं है, तुम हार गए हो। ये ख्वाजा आसिफ साहब है, नून लीग। और मेरे अमाल का, मेरे जेल में आ भी रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब है। अच्छा। अल्लाह जानता, मुझे ऐसे लग रहा था कि तस्वीर मुझे कह रही है
ਜੀ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦਾ ਏ ये सियालकोटी एक्सेंट में बोल रहा है। मेरे बालका आज मैं फिर खाली हाथ कर जाऊं। चलो ऐसे ऐसे मार पड़ेगी, खाली हाथ में तुम्हें नहीं जाने देता। एक तस्वीर है, वो अगर तुम बूझ लोगे ना तो तुम्हें आधा किलो मखाने ले दूं। ये सिर्फ ऐसे मुंह का जायका बदलने के लिए तस्वीर है, तुम फौरन पहचान लोगे। चलो ले दो यार मखाने, बंदा खाली हाथ जाता बुरा लगता है। ये लो। ओ मैं सदके जाऊं अपने मुर्शिद पाक के। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बहुत मशहूर तस्वीर है उनकी। क्या कहने यार, मुर्शिद मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि साथ वाले बंदे की वजह से ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक ना लो, आधा किलो मखाने लो। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे माशरे के एक ऐसे किरदार हैं जिनकी अहमियत का अंदाजा हमें उसी वक्त होता है जब हमें उनसे वास्ता पड़ता है, यानी एक पटवारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मैंने तो सोचा था तुम बड़े रवायती किस्म के पटवारी होगे, तुम तो बड़ी मतलब मॉडर्न किस्म के आदमी हो यार। पहले तो अपनी उंगली पे दंदी बदो, क्यों? उठ के किसी पक्की सी दीवार पे टक्कर मारो। और तुमने पटवारी को यार ही कह दिया। पटवारी ऐसे वैसे का यार नहीं होता, सिर्फ पैसे का यार होता है। अच्छा, मैं ऐसा वैसा हूँ? हाँ, मेरे लिए ऐसे वैसे ही हो। ये जो तुमने 10-12 हजार का सूट पहना हुआ है, ये 2-3 हजार की टाई लगाई हुई है, ये चलो 10-12 हजार के वलैती बूट पहने हुए हैं, ये जो तुम्हारी कुल लुकात है ना, वो मेरी एक छोटी उंगली पे है। गोल्ड रिंग। अच्छा यार ये छोड़ो, नाम क्या है तुम्हारा? ले भाई, जिस तरह तुम मुझे इजी ले रहे हो ना, लगता है कोई दरख्त के रिहायशी हो। क्या मतलब? मगर ये जहन पे रखना, दरख्त में भी रिहायश हो ना तो वो होता जमीन पे ही है। क्या मतलब तुम्हारा यार? और एक बात याद रखना, जिस चीज का तल्लक जमीन से हो ना, उसका पटवारी से जरूर वास्ता पड़ता है। अच्छा बाबा, नाम तो बता दो। नाम तो मेरा है रब नवाज। वैसे मैं सब नवाज हूँ, और अगर कोई ना नवाज के देखे तो उसकी जमीन के खाते दरिया में आ जाते हैं। दरिया में आ जाते हैं? वो कहते नहीं है नेकी कर दरिया में डाल। सारी जिंदगी अपनी जमीन दरिया में ही ढूंढते रहोगे लाश की तरह। अच्छा यार ये तो बताओ, पटवारी का काम क्या होता है? काम तो खैर हम कुछ नहीं करते, इसके लिए तो आगे बंदे रखे हुए हैं। वैसे पटवारी का काम होता है जमीन नापना और नोट गिनना। यूं जो जमीन नापता जाता है, नोट गिनता जाता है। वैसे तो इंतकाल होता है तो लोग धाड़े मार मार कर रोते हैं, हम इंतकाल करते हैं तो लोग लड्डू बांटते हैं। अच्छा मोहतरम, ये बताइए फर्ज क्या होती है? ये जो पटवारी को मोहतरम कह रही है, लगता है इसका 3.5 मरले का प्लाट है। वैसे तो बीबी फर्द जो है ये इंसान को कहते हैं। अच्छा। मगर ये जो हमारे वाली फर्द होती है ना, ये जमीन का कागज होता है। अच्छा। और ये ऐसा कागज होता है जिससे उन कागजों की बड़ी बारिश होती है जिसमें कायदे आदम की तस्वीर होती है। और जो इस बारिश को रोकने की कोशिश करे, उसके प्लाट का खसरा ऐसा गायब करते हैं कि वो ढूंढता ढूंढता खुसरा हो जाता है। खसरा नहीं मिलता। अच्छा बस सदर अयूब वाला वाकया तो तुमने सुना होगा ना यार, कि किसी बुढ़िया ने उसे दुआ दी थी कि अल्लाह तुम्हें पटवारी बना दे। और इख्तियारात ही इतने होते हैं। अच्छा वाकई इतने इख्तियारात होते हैं? हाय, एक दफा कौमी खिदमत का मौका तो दें। ऐसी पमाइशें करेंगे कि भारत को दुनिया के नक्शे से ना मिटा दिया तो नाम मिटा देना मेरा। खाते खतौनियों में न्यू दिल्ली को उकाड़े की तहसील बना देंगे। यार इतने बड़े हेरफेर कर देते हो। और ये तो कुछ भी नहीं जनाब, आप ऑर्डर करें, व्हाइट हाउस की जाली फर्दें असलम नाई के नाम की बना देते हैं। ओबामा दुआइयां देता फिरेगा कि व्हाइट हाउस मेरा है, पर नहीं, पढ़े लिखे बंदे फर्दे देख के कहेंगे ना असलम नाई का है, और अनपढ़ बंदे कहेंगे कि अपना रंग देख और व्हाइट हाउस देख। अच्छा यार इतना कुछ करते हो, कभी पकड़े नहीं गए? पटवारी पकड़ना और डौला मच्छी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुतात तबीयत होती है पटवारी की।
पटवारी कैसे पकड़ा जाए? हर काम के लिए तो आगे उसने बंदा रखा होता है, खुद दूर ही रहता है। सही। पटवारी की एहतियात तो गानों में भी जाहिर होती है। गानों में वो सुना नहीं आपने, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। हालांकि ये काम करीब जाके भी हो सकता है, मगर नहीं, एहतियात। अच्छा यार, रब नवाज फारिग वक्त में क्या शोगल है? नोट गिनता हूँ और फिर खर्च करता हूँ। नहीं यार, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा नोट बनाता हूँ। नोटों का चक्कर रहता है सारा दिन ज्यादा। अच्छा छोड़ो यार, ये बताओ तुम्हारी तालीम कितनी है? 2-2.5 लाख रोजाना। यार मैं तालीम पूछ रहा हूँ। अच्छा, तालीम करोड़ों तक गिन लेता हूँ। यार अच्छा ये बताइए, जो आपने ज्वेलरी पहनी है भाभी जी की पहनी हुई है? नहीं, उसकी अलहदा है, मेरी अलहदा है, सेपरेट। खरीदते इकट्ठे हैं, पहनते अलहदा अलहदा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मुलाजमत का सबसे बड़ा मसला क्या है? तरक्की। अच्छा, तरक्की ना होना? नहीं, तरक्की हो जाना। तरक्की हो जाना? हाँ, पटवारी के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी तरक्की ना हो जाए। पटवारी वाहिद ऐसी जॉब है जो पटवारी भर्ती होता है, पटवारी रिटायर होना चाहता है और पटवारी फौत होना चाहता है। बल्कि पटवारी तो दुआ मांगता है कि या अल्लाह मुझे जन्नत में पटवारी लगाना। अच्छा ये बताओ, तुम एक ही जमीन की बार बार पैमाइश किस चक्कर में करते हो? करनी पड़ती है। क्यों? सर्दियों की पैमाइश अलहदा होती है, गर्मियों की पैमाइश अलहदा होती है। गर्मी से जमीन फैलती है, बारिश से फूल जाती है और सर्दी में सुकड़ जाती है। तो पैमाइश तो करनी पड़ती है ना बार बार। अच्छा ये बताओ, बच्चे क्या करते हैं? नोट मांगते हैं। करते क्या है? खर्च करते हैं। नोट नोट नोट। यार मौत याद नहीं रहती? जब भी घंटे याद होती है, इसीलिए तो फटाफट इकट्ठे कर रहा हूं। नाज़रीन, ये था हस्बे हाल। आपकी ईमेल्स, खतूत और मैसेजेस का शिद्दत से इंतजार रहेगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।